Hey, good morning, student. Welcome you all. So, as you all know, that we have done or we have already discussed the first part of this particular chapter, that is the necklace. And in the previous part, we will just talking about, or we was just and a whole the story revolves around a lady who is Matilda Loris, and he was very desirable lady all time. He just thinking about thought about dress and jewelry, and one day her husband gave him a कार्ड इनविटेशन जिसने उन्हें बॉल पार्टी को ज्वाइन करना था. सो उस इनविटेशन के लिए ही बॉट शी बॉट अ वेरी ब्यूटीफुल dress, and it cost around 400 francs, and he borrow a very beautiful jewelry, a diamond jewelry, with her friend. Her name is Mrs. Frostier. So let's see. And when they both come back to the home after the party, so they were like very shocked because जो नेकलेस था वो अब लॉयसल के नेक पर नहीं था. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन दिस स्टोरी. Loisel, already half undressed, means Mr. Loisel, asked what is the matter. So when his wife screamed, and he listened that scream, so he just half of dressed, and he said कि what's the matter, अब क्या हुआ, what happened. She turned towards him excitedly. I no longer have Madam Foster necklace. So she said कि मेरे पास अब Madam Foster का necklace नहीं है. He arose in dismay. How is that? It is not possible. So बहुत dismay हो जाता है, बहुत disappointed हो जाता है, बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the clock, in the pockets, everywhere. They couldn't find it. So वो सब जगह उसको देखते हैं, सारे folds में, dresses में, clock में, but they couldn't find that necklace. So he asked, means Mr. Loisel asked, you are sure you still had it when we left the minister's house? So he said कि तुम्हें अच्छे से याद है कि तुम जब मिनिस्टर के हाउस से वापस आई थी, मीन्स द बॉल पार्टी से रिटर्न हम कर रहे थे, तब भी तुमने वो नेकलेस वेयर किया हुआ था. So finally he said, yes, I felt it as we came out, but if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. So बोलती हाँ मुझे याद है, I can felt it when we came out of the party. So but you are right. अगर वो कैब में नहीं होगा, मतलब वो कैब में हो सकता है, क्योंकि अगर वो बाहर गिरता, स्ट्रीट में गिरता, तो हम उसको फॉल की आवाज़ हमें 100% सुनाई देती. सो येस इट इज़ पॉसिबल. डिड यू टेक द नंबर? सो शी आस्क्ड कि तुमने क्या नंबर लिया उस गाड़ी का, कैब का? नो. एंड डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? शी सेड नो. उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं किया था. ऑफ कोर्स नोबडी नोटिस दैट थिंग, बिकॉज व्हेन वी आर टू टायर्ड देन हमें छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रहती. So they looked at each other, utterly cast down. Cast down means sad or worried. So they both looked each other, or they both very sad and worried, because of course worried तो होंगे, इतना expensive necklace था वो खो गया था. Finally Loisel dressed himself again. Finally Mr. Loisel ने आपको वापस dressed किया. I am going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. So कह रहे जहाँ जहाँ भी हम चले हैं वहाँ पे मैं देखता हूँ, मे बी हमें वो नेकलेस वापस मिल जाए. And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. So वो चला जाता है. He went. Mr. Loisel went to find that necklace. So she remained in the evening gown, means Mrs. Loisel just remained the same evening gown में रहती है. वो बेड पर यानी सोने के लिए नहीं जाती है. Towards 7 o'clock, her husband returned. Around 7 o'clock उसका husband वापस आता है. He had not found nothing. वो कुछ भी found नहीं कर पाते हैं. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. So everything they can do, whatever they can do. So
उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, कैब ऑफिस में भी इंफॉर्मेशन दे दी और एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया न्यूज़पेपर में. शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिवाइलमेंट. बिवाइलमेंट मीन्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज. बहुत कंफ्यूज थे वो लोग, क्या करें क्या नहीं करें. सो बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, वो बहुत बिवाइलमेंट थे जो भी डिजास्टर हुआ था उनके साथ. लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग. तो अगेन लॉयजल इवनिंग में आता है. हिज फेस पेल, हिज फेस in yellow in color. He had discovered nothing. Still, he had nothing discovered. See, he said, write to your friend that you have broken the clasps of the necklace and that you will have to have it repaired. That will give us time, she wrote as he dictated. So, he suggested something. उन्होंने कहा कि you just write a letter to your friend and ask and tell her कि जो claps है, claps is a grabs means we just hold to something. So वो जो hook होता है necklace का, वो एक loop पे जब hold करता है उसे claps कहते हैं. So जो claps था वो broken हो चुका है necklace का, ऐसा अपनी friend को कहो और हम इसे क्या करवा रहे हैं, repair करवा रहे हैं. तो it takes time. So same जैसा भी whatever husband told her or dictated her, she wrote exactly the same thing. At the end of a week, they had lost all hopes, and Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." So almost एक week हो जाता है और after the week, Loisel बोलता है कि हमें anyhow अब इसको replace करवाना पड़ेगा because we don't have any other options. So in a shop of Palais Royal, they found a chaplet. Chaplet means a string of diamonds, which seems to them exactly like the one they had lost. तो उस शॉप पे बेसिकली उन्होंने एग्जैक्ट सेम टू सेम वही डायमंड नेकलेस देखा था जो उसके पास था, मिस्ट्रेस फ्रॉस्टियर का था. इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स. और अराउंड कितनी वैल्यू का था वो, कुछ 40,000 फ्रैंक्स का था वो. सो सी हियर, उनके लिए 4,400 फ्रैंक्स भी बहुत वैल्यूबल थे, बहुत वैल्यू करते थे. सो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम टू अरेंज द 40,000 फ्रैंक्स. सो दे कुड गेट इट फॉर 36,000. तो दे सेड कि वो उनको कितने में मिल जाएगा, वो नेकलेस अराउंड 36,000 में मिल जाएगा. इट वॉज अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर देम. It is a very huge amount for them. So Loisel possessed 18,000 francs with his father had left him. So Loisel के पास कुछ 18,000 francs थे जो उसके father उसके लिए छोड़ कर गए थे. So he borrowed the rest, or the remaining amount he borrowed with some money lenders. So he made ruinous means होता है disaster promises किए उसने all the money lenders से. Took money from Azras means money lenders and the whole race of lenders. उससे बहुत सारे उसने प्रॉमिस किए कि मैं दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, आफ्टर 1 week, आफ्टर 15 days or 1 month. So then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. So at last 36,000 francs वो देते हैं and got the same necklace. When Madame Loisel took back the jewel to Mrs. Foster, the later means होता है denoting the second और द सेकेंड मैंशन, टू पीपल और टू थिंग. जो भी सेकेंड मैंशन होती है पर्सन और थिंग्स में, उसको डिनोट करते हैं, उसको लेटर कहते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट डिनोट हुआ है यहाँ पे फर्स्ट डिनोट हुआ है मैडम लॉयसल. सॉरी, अगेन आई ड्रॉ इट. ओके ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे मैडम लॉयसल है एंड सेकेंड यहाँ पे मैडम फ्रॉस्टियर है. इट मीन्स मैडम फ्रॉस्टियर की बात हो रही है. मैडम फ्रॉस्टियर कहती हैं मैडम लॉयसल से वेरी फ्रिजिड टोन में, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, कि तुम्हें मेरा जो नेकलेस है वो जल्दी लौटा देना चाहिए था, बिकॉज फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, बेबी हो सकता है कि मुझे इसकी जरूरत हो. Madame Frostier did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. Madame Loisel को fear था कि अगर जो Frostier है अगर उसने open कर लिया उस box को तो क्या होगा. What would she think if she should perceive the substitution? So कह रही है कि क्या वो सोचेगी if she aware कि जो substitution है, जो replacement है, become aware कि जो रिप्लेसमेंट है नेकलेस का, अगर वो पहचान गई, रिकॉग्नाइज कर लिया, तो व्हाट शुड सी से, व्हाट शी टेक हर फॉर अ रॉबर, की मतलब उसको ऐसा तो नहीं लगेगा कि वो कोई रॉबरी कर रही है या कुछ ऐसा. मैडम लॉयसल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी नाउ, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बॉक्स को ओपन नहीं करती. नाउ द मैडम लॉयसल
रियलाइज हर मिस्टेक, और जो लाइफ ऑफ नेसेसिटी है वो उनको बहुत अच्छे से अब पता चल जाती है आफ्टर दैट इंसिडेंट. सो शी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हीरोइकली. वट एवर उन्होंने किया विद द नेकलेस बहुत हीरोइकली उन्होंने कंप्लीट किया था. इट वॉज एडमायरेबल. सो इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट. और जो भी उन्होंने उधार लिया था वो बहुत नेसेसरी था कि उन्हें पे बैक करना पड़ेगा. शी वुड पे इट. देन दे सेंट अवे द मेड. दे चेंज देयर लॉडगिंग्स. लॉडगिंग्स मीन्स होता है टेम्पररी अकोमोडेशन. जो भी उनकी टेम्पररी अकोमोडेशन थी उन्होंने वो चेंज कर लिया था. उन्होंने अपनी मेड हटा दी थी. एंड दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक. और एक एटिक में उन्होंने एक छोटा सा रूम ले लिया. She learned the odious. Now she learned the odious means unpleasant work of a kitchen. अब वो सारे unpleasant work करने लग गई थी किचन में. She was the dishes, she was the solid linen, the clothes, dish clothes. हर चीज़ वो clean करने लग गई थी, चाहे वो dishes हो, कपड़े हों, whatever. When she hung on the line to dry, और वो एक लाइन में उनको सुखा देती थी. She took down to refuse to the street each morning and brought up the water. वो नीचे जाती थी और गली में रस्तों में और क्या लेने के लिए, पानी लेने के लिए. Stopping at each landing to catch her breath and clothed like a woman of a people, she went to the grocer. Means जैसे normal person करते हैं वैसे ही वो करती थी, like all the housemakers. वो ग्रॉसरी शॉप पे जाती थी, बूचर शॉप पे जाती थी, फ्यूचर शॉप पे जाती थी, विद हर बास्केट ऑन हर आर्म. शॉपिंग करती थी. हैंडलिंग मीन्स बार्गेनिंग भी करती थी. एंड लास्ट सॉ ऑफ हर मिजरेबल मनी. और जो भी सॉ होती थी, सॉ मीन्स लोएस्ट अमाउंट और लोएस्ट करेंसी, उस मिजरेबल मनी से और जो भी उनके पास था उससे वो शॉपिंग करती थी. सो द हस्बैंड वर्कड इवनिंग. अब ऐसा नहीं है कि केवल वाइफ ही सारे वर्क करती थी, हार्ड वर्क करती थी. हस्बैंड डू द सेम थिंग. हस्बैंड डिड द सेम थिंग. सो हस्बैंड वर्क इवनिंग में वो काम करते थे. पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर. ऑर्डर पे वो जो मर्चेंट्स की बुक्स थी उनको लेकर आना. नाइट्स में ऑफन डिड कॉपिंग एट 500 अ पेज. और कॉपिंग करते थे वो, और उनको हर कॉपिंग के कितने मिलते थे, एक सिंगल पेज के ही गॉट 500. And this life lasted for 10 years, and they spent these kind of life for 10 years, almost 10 years उन्होंने इस तरह की लाइफ जी है. So at the end of 10 years they had restored all. और after the 10 years उन्होंने सब कुछ पा लिया था, ठीक है, सब कुछ रिस्टोर कर लिया था जो दे लॉस्ट that time. So Madam Loisel seemed old now. So it is very obvious thing कि जो Madam Loisel है वो अब बहुत old दिख रही थी. She had become a strong, hard woman, crude woman of the poor household. वो जो नॉर्मली घर के लोग होते हैं वैसे ही वो दिख रही थी. बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर आ गई थी बेसिकली. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड. ही नेवर कॉम्ड समटाइम्स, और बहुत ही कम कॉम करती थी. हर स्कर्ट्स और मीन्स बहुत ही विथर्ड कंडीशन में थी. हर हैंड्स रेड. शी स्पोक इन अ लाउड टोन. बहुत लाउड टोन में बोलने लग गई थी. एंड वॉश द फ्लोर विथ लार्ज पेल्स. पेल्स मीन्स लार्ज बकेट ऑफ वाटर. और जब भी वो फ्लोर को क्लीन करती तो बहुत सारा पानी लेकर वो क्लीन करती थी. सो बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट ऑफिस शी वुड सिट herself before the window and think of that evening party of former times, of what that ball where she was so beautiful and so flattered. So whenever her husband was late, जब भी वो लेट होते थे ऑफिस से, वो just sit in front of the window और just सोचती रहती थी उस इवनिंग पार्टी की, बॉल पार्टी की, फॉर्मर्स टाइम की, जो भी उनका पहले बीता हुआ टाइम था, उस ब्यूटीफुल ड्रेस की. एंड शी लुक too beautiful that time and attractive also. How would it have been if she had not lost the necklace? So सब कुछ यही दिमाग में चला था कि देखो सब कुछ अगर वो नेकलेस नहीं खोती तो सब कुछ कितना सही रहता. Who knows how singular is life and how full of changes. कोई नहीं जानता कि अब वो लाइफ कितनी चेंज हो गई है, कितने फुल ऑफ चेंजेस उनकी लाइफ में आ गए, बिकॉज एवरीथिंग वॉज रिन्यूड दैट टाइम. और एक न्यू लाइफ वो वापस जी रहे हैं. हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन. कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ ख़त्म कर देती हैं और हमें दोबारा कुछ सेव करना पड़ता है. तो वन संडे एज शी वॉज taking a walk in the Champs Palaces. Champ Palaces एक जगह का नाम है जहाँ पे वो नॉर्मल वॉक कर रही थी. तो rid herself of the cares of a week, she suddenly perceived a woman walking with a child. So suddenly वो एक women को recognize करती हैं with a child. It was Madam
फ्रॉस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। वो वापस मैडम फ्रॉस्टियर को देखती हैं, पहचान जाती हैं, वो अभी भी बहुत यंग थी, प्रिटी थी, अट्रैक्टिव थी, बिकॉज शी दैट टाइम वो तब भी पैसे वाले थे, रिच थे, तो ऑब्वियस है कि वो बहुत प्रिटी होंगी, उनको ऐसा हाउस होल्ड वर्क नहीं करना पड़ता था। सो मैडम लॉयसल वॉज अफेक्टेड। ऑब्वियस है मैडम लॉयसल वॉज ऑल टाइम कंपेयर्ड हरसेल्फ टू हरसेल्फ एवरी टाइम, तो वो कंपैरिजन में ही रहती थी, सो उन्हें ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। शुड सी स्पीक टू हर, येस सर्टेनली, एंड नाउ शी हैड पेड, शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। सो शी सेड टू हरसेल्फ कि अब वो क्या वो उससे मिले, उसने सोचा हाँ मुझे मिलना चाहिए, और सर्टेनली वो कह रही है कि खुद से कि अब मुझे उसे सारी बातें बतानी चाहिए, और अब तो बहुत टाइम हो गया, अब बताने में क्या प्रॉब्लम है। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी, उसका नाम था जेनी फ्रॉस्टियर। तो वो कहती हैं गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर एंड वॉज astonished to be so familiar addressed by this common personage. So she doesn't recognize her क्योंकि बहुत कॉमन पर्सन वो लग रही थी और एड्रेस नहीं कर पाई थी। शी स्टैमर्ड, वो स्टैमर्ड करती हैं, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। सो शी सेड कि मैं तो आपको नहीं जानती, शायद आपसे कोई गलती हुई है। नो, आई एम मैटिल्डा लॉयसल। सो शी सेड कि मैं कौन हूँ, मैं मैटिल्डा लॉयसल हूँ। Her friend uttered a cry of astonishment. उसकी फ्रेंड बहुत जोर से astonishment means surprising, बहुत सरप्राइज होके, अमेज होके चिल्लाती है। वो बोलती ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम इतनी चेंज कैसे हो गई। सो येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू। वो कहती है जब से मैंने तुम्हें देखा है मैंने बहुत हार्ड टाइम स्पेंड किया है, एंड सम मिजरेबल वंस ऑल्सो, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट। देन मिसेस फॉरेस्टर सेड कि ओ मेरी वजह से, ऐसा कैसे। सो यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, do you remember the diamond necklace that you loaned me, means that you lent me that time, मतलब जब मुझे उधार दिया था तुमने, टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, जब मैंने मिनिस्टर के बॉल्स में पहना था। yes yes very well, so she said हाँ हाँ मुझे याद है। well I lost it, so she said कि मैंने उसको खो दिया था। how is that, since you return it to me, so she said कि तुमने तो मुझे वो रिटर्न कर दिया था, तो तुम खो कैसे सकती हो। so at last she said I returned another to you exactly like it, मैंने वही रिटर्न किया था बिल्कुल सेम टू सेम, तुम्हें नया खरीद कर दिया। and it has taken us 10 years to pay for it, और ऑलमोस्ट हमें 10 years लगे उसको पे करते करते। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। सो वो अपनी फ्रेंड को कहती जिसके पास कुछ नहीं होता, मतलब तुम समझ सकती हो हमारे पास कुछ नहीं था, और इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस कि हम इतना सब कुछ पे कर पाए, तो हमें ऑलमोस्ट 10 years लगे, बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। एवरीथिंग इज फिनिश नाउ मैं एक ऐसी स्टेट पे हूँ जो मैं पीसफुल हूँ, हैप्पीनेस हूँ, आई एम गुड नाउ। Mrs. Madam Foster stopped short. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine." मैडम फ्रॉस्टर उसको बीच में रोकती है और उसे कहती है कि अच्छा तुम ये कह रही हो कि तुमने वो डायमंड नेकलेस कराया मेरा रिप्लेस करने के लिए, जो मेरा नेकलेस था। Yes, you did not perceive it then. They were just alike. तुम उसे उस टाइम पहचान नहीं पाई क्योंकि वो exactly सेम लग रहे थे। And she smiled and proud and smile, simple joy. वो स्माइल करती हैं, proudly स्माइल करती है, बहुत सिंपल जॉय में। वो कहती हैं मैडम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एंड शी रिप्लाई। बहुत टच हो जाती हैं, बोथ हर हैंड्स उसके रखती हैं और बोलती हैं ओ माई पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स। मीन उसका जो नेकलेस था वो असली नहीं था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। वो कहती हैं कि वो 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा का था ही नहीं, और उसमें उन्होंने कितने खर्च किए, लाइक 36,000 फ्रैंक्स। सो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको ऑनेस्टी के साथ अगर उसको पहले बता देती तो ऐसा कुछ उसके साथ होता नहीं। सो इफ वी ऑनेस्टली शी वुड हैव गॉन एंड कन्फेस टू हर फ्रेंड, डेफिनेटली शी वुड हैव गॉट अनदर रिजल्ट और अदर रिजल्ट। मे बी इसकी फ्रेंड कहती है ओके नो प्रॉब्लम, जो भी अमाउंट का है, मीन्स 500 फ्रैंक्स का है, मुझे आप 500 फ्रैंक्स दे दो। तो इतना जो सफ़र उन्होंने 10 years का किया था वो नहीं करना चाहिए। तो हियर इज द आप कह सकते हो कि दैट इज प्रूव्ड दैट लाइन दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट policy. So I hope you all have must understand this chapter very well. So with this we complete this chapter or this part also. Thank you for watching this video.